एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। This is cylinder, hollow cylinder. Let temperature of this end is T1 and temperature of this end is T2, then T1 is greater than T2. This is R1 and this is R2. यहां से हीट करंट आई जा रही है, तो आप देख सकते हैं जो हीट करंट जाने का जो एरिया है वह थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो फॉर दिस if thermal conductivity is K, for this I can write in very easier manner, that is I is equal to K T1 minus T2 by L, where A is pi R2 square minus pi R1 square into T1 minus T2 by L. Let us have another example for heat current. This is a closed surface. Let this is A, this is B and this is C. Thermal conductivity of this cube is K. If temperature of this side is T1 and T2, then heat current ऐसे फ्लो होगा. Then what is heat current for this? That is I equal to K T1 minus T2 upon distance L. That is equal to KA. A हो जाएगा आपका B into C क्रॉस सेक्शनल एरिया T1 minus T2 upon
आप देख सकते हैं कि इस साइड से इस साइड तक के लिए यह हीट करंट आएगी। ना साइड चेंज करता हूं मैं, लेट ये टेम्परेचर T1 ये T2, तो क्या हीट करंट इस तरफ फ्लो होकर इधर निकल जाएगी। तब आप लिखेंगे फॉर दिस I इक्वल टू K A इंटू बी T1 माइनस T2 अपॉन C, और इनर सरफेस से आउटर सरफेस T1 T2 फॉर दिस यू कैन राइट I इक्वल टू K, इसके लिए क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया होगा आपका A इंटू सी T1 माइनस T2 अपॉन B। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से लेनी है और लेंथ किस तरह से इसमें लेनी है, तो आप हीट करंट निकाल सकते हैं। दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस। Thermal resistance, थर्मल रेजिस्टेंस, जैसा कि आपने पहले देखा है कि मान लो दिस इज ए रेजिस्टेंस आर, वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि यहाँ पोटेंशियल V1 या पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर करंट आई जा रही, तो यू कैन राइट डेट इलेक्ट्रिक करंट इज change in potential upon resistance. Is it clear? Yes. Where I is electric current and V1 minus V2 potential difference and R electric resistance, like this we have a conductor of length L, cross sectional area A, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। I करंट इधर से जाएगी तो I इधर से निकल जाएगी, वह T1 ये T2 T1 ग्रेटर देन T2, रॉड आपकी लैग्ड एंड स्टेडी टेम्परेचर। तो यू कैन राइट फॉर दिस I इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई L। रीअरेंज करें इसको तो यू कैन राइट T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। नाउ कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू इक्वेशन नंबर 2। As you compare from 1 to 2, you can see that here electric resistance is R and here thermal resistance is L by KA। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं I is equal to T1 minus T2 upon RTH and implies RTH is L by KA। तो what is RTH? RTH is
थर्मल रेजिस्टेंस। इस प्रकार आप किसी भी कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब series of parallel connection of conductors। series and parallel। connection of conductor। वो ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं if there are three resistance R1, R2, R3, a current I flow from this, then you can write RTH is R1 plus R2 plus R3। In this manner, if I connect three rods of different area and different length is L1, L2 and L3. Temperature is T1 and T2. This is K1, this is K2 and this is K3। इसका एरिया A1, A2 and A3. A current is flowing from here, that is I. So what is the net heat resistance or thermal resistance of three conductors? And I can write R1 हो जाएगा आपका यहां पर L1 अपॉन K1 A1, R2 हो जाएगा L2 अपॉन K2 A2 एंड R3 हो जाएगा L3 अपॉन K3 A3। देन यू कैन राइट RTH R1 प्लस R2 प्लस R3 that is L1 K1 A1 plus L2 K2 A2 plus L3 K3 A3। इस प्रकार आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आप हीट करंट इजीली निकाल पाएंगे। कैसे? I इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH। RTH की वैल्यू यहां लिखे रखें तो आप आसानी से I निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा सीरीज टाइप का कनेक्शन। इसी प्रकार पैरेलल टाइप का कनेक्शन मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, देखते हैं। In parallel connections of the resistance R1
R2 and R3. There are three resistance. These are in parallel. Let a I current flow from one end to another end, then I1, I2 and I3 current will flow from R1, R2 and R3. तो you can write it कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा आपका RTH, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. इस प्रकार आप यहां पर नेट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं. अब आप 3 कंडक्टर रोड है आपके पास, उनको आप जोड़ना चाहते हैं पैरेलल में. तो यू कैन this is one road, another, third. आप इनको इस तरह जोड़ सकते हैं. लेट यहां से आई करंट जाएगी और इस पूरी सरफेस का, और इस सरफेस का टेम्परेचर सेम है, इसका T1, इसका T2. द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L1, length of this conductor is L2 and length of this conductor is L3. A is A, A1, A2 and A3 and thermal conductivity K1, K2 and K3. आपको निकालना है नेट हीट करंट कितनी फ्लो होगी थी. तो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज R1. R1 इज L1 K1 A1, R2 इज L2 K2 A2 और R3 is L3 K3 A3. तो आप देख सकते हैं इन तीनों से यू कैन राइट 1 upon RTH, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that is K1 A1 upon L1 plus K2 A2 upon L2 plus K3 A3 upon L3. इस प्रकार आप RTH निकाल सकते हैं. देन हीट करंट हो जाएगी आपकी I is equal to KA I is equal to T1 minus T2 upon RTH. ऊपर वाली इक्वेशन से RTH की निकाल लीजिए और मेन हीट करंट आई आपकी यहां से निकाल सकते हैं. For example, this is road L1 A1 K1 this is another road L2 A2 K2 L3 A3 K3 and this is L4 K4 A4 और this is L5 A5 K5.
आप यहां पर देखिए देयर आर 5 रोड्स L1, L2, L3, L4 and L5. I have to find out the net heat current from one end to other end. तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से करंट आई जाएगी और इधर से हीट करंट आई निकल जाएगी। तो आप देखें यहां पर बहुत ध्यान से, लेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4 और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R5। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 क्या R नेट हो जाएगा इसका। तो इसको आप भी सोल्व करेंगे सर्किट को, तो यू कैन फाइंड दिस इज R1 मीन्स आप लिख सकते हैं यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और जो नीचे आपकी वो है R5। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तब आप लिखेंगे नेट रेजिस्टेंस R5 इंटू R1 प्लस R2 प्लस सॉरी ये R2 होगा प्लस R3 R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सॉरी R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। Then net heat current, net heat resistance RTH that is equal to R1 plus R5 R2 plus R3 plus R4 upon R2 plus R3 plus R4 plus R5 T1 to T2। तो आपको I करंट निकालनी हो तो यू कैन राइट I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH। इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रोड ले सकते हैं और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रोड से आप लोग RTH नेट थर्मल रेजिस्टेंस निकालिए और उससे आपको नेट हीट करेंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है वह आपको यहां पर मिल जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द रोड इफ रोड्स आर जॉइन इन सीरीज फैशन और पैरेलल फैशन। मान लो रोड्स को आपने सीरीज फैशन में जोड़ा, कैसे? इसकी कंडक्टिविटी K1 K2 K3 लेंथ L1 L2 एंड L3। इसका एरिया A1 मान लेता हूं, इसका एरिया A2, इसका एरिया ये तीनों का एरिया अलग अलग माना गया है। यहां से करंट आई जाएगी तो यहां से करंट भी आई निकल जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग,
यदि मुझे के इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं क्या ऐसे बनाऊंगा, मतलब के इक्विवेलेंट A1 A2 A3 और L1 L2 एंड L3। यदि दोनों कंडक्टर्स समान बिहेव करें, इक्वल बिहेवियर करें, तो आई कैन राइट फॉर दिस वन I equal to T1 minus T2 upon RTH 1 for this, or for this I is equal to T1 minus T2 upon RTH 2 for this, for same behavior। अच्छा, हीट कंडक्ट सेम फ्लो हो रही है और टेम्परेचर आर सेम, देन यू कैन राइट RT1 is RTH 2 if I and T1 minus T2 are same, then RTH1 बराबर RTH2। एग्जैक्टली बात है, तो RTH1 लिखिए यहां पर L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2 प्लस L3 अपॉन K3 A3 बराबर L1 अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A2 प्लस L3 अपॉन K इक्विवेलेंट A3। आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा L अपॉन K A बराबर, इसको लिख सकते हैं आप K इक्विवेलेंट कॉमन ले लें यहां पर, सिग्मा L बाई K। तो रिसॉल्विंग इट, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा L बाई K अपॉन सिग्मा L बाई K A। तो आप इस तरह से K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं जब आपके कंडक्टर्स, आपकी जो रोड्स हैं वह सीरीज में जुड़ी हुई हो, सीरीज में जुड़ी हुई होगी, तो आप इस तरह से इनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल पाओगे। तो यहां ध्यान रखना I और T1 माइनस T2 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी आप RTH1 बराबर RTH कर पाओगे। Now equivalent conductivity for parallel combinations. Equivalent conductivity for parallel combination. R1, R2 and R3। यहां से करंट आई गई, आई निकल गई, सॉरी, इसको और आसान तरीके से करते हैं।
दिस इज T2, T1 और दिस इज T2। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ L1, L2 एंड L3, K1, K2 एंड K3, एरिया A1, A2 एंड A3। यहां से आई करंट जाएगी और यहां से आई निकल जाएगी। तो फॉर दिस कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH1। और यहां देखें आप, at T1 at T2, L1, L2, L3, A1, A2, A3, K1, K2, K3। यहां से आई करंट आई और यहां निकल गई। लेट दिस इज द E equivalent, this is also E equivalent, this is also E equivalent, then you can write I is equal to T1 minus T2 upon RTH2 if I and delta T are same, then RTH1 बराबर R2H होना चाहिए। For this you can write RTH1 is वन अपॉन RTH बराबर K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2 प्लस K3 A3 अपॉन L3। देन RTH1 बराबर 1 अपॉन सिग्मा Ka बाई L। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन यहां पर RTH2 बराबर 1 अपॉन सिग्मा K इक्विवेलेंट A अपॉन L। तो आप यहां से K इक्विवेलेंट बाहर ला सकते हैं और लिख सकते हैं A बाई L। जब ये दोनों बराबर हैं तो यू कैन राइट 1 अपॉन सिग्मा K A बाई L बराबर 1 अपॉन K इक्विवेलेंट सिग्मा A बाई L। देन K इक्विवेलेंट वाज इक्वल टू सिग्मा K A बाई L अपॉन सिग्मा A बाई L। इस प्रकार आप इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस में।
एग्जाम्पल करते हैं। कोई एक हमारे पास हीट रिजर्वायर है, मीन्स एट टी नोट, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एम मास का सब्सटेंस है, एच इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस and T1 is the initial temperature of this substance, where T0 is temperature of reservoir constant, T1 is temperature of substance, m is the mass of substance. अब हमने क्या किया, एक रोड को इस तरह से जोड़ दिया। लेंथ ऑफ द रोड इज L, K is the thermal conductivity of the road and A is the cross sectional area of the road, where A is the L is the length of road, A is cross sectional area and K is कंडक्टिविटी ऑफ द रोड। अब देखिए आप, इसका टेम्परेचर टी नॉट तो कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर टी नॉट, धीरे धीरे समय के साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ यहां से हीट इधर जाएगी और इसमें आने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लो एट एनी टेम्परेचर टी, टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज टी, एट एनी टाइम टी temperature of this substance is T. T क्या है? Temperature of substance at time T. So we have to find out the relation between T, temperature and time T. हमें यह रीजन फाइंड आउट करना है कि टाइम के साथ साथ सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर दिस, यहां से यहां तक हीट करंट जा रहे हैं, मान लो टेम्परेचर टी है, तो यू कैन राइट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज के ए टी नॉट माइनस टी अपॉन एल। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहां पर, फॉर दिस यू कैन राइट, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। दोनों कंपेयर करके बराबर कर सकता हूं, तब मैं लिख सकता हूं एम एस डी टी बाई डी टी बराबर के ए टी नोट माइनस टी बाई एल। और रीअरेंजिंग करूंगा तो आई कैन राइट 1 अपॉन टी नॉट माइनस टी डी टी इज इक्वल टू के अपॉन एम एस एल डी टी। दिस इज द टाइम, दिस इज द टेम्परेचर, कैपिटल टी इज द टेम्परेचर, स्मॉल टी इज द टाइम। नाउ जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हो रहा है T1 से T पे, और टेम्परेचर और टाइम हो रहा है 0 से T तक। तब इंटीग्रेट करें, लोग
ln टी नोट माइनस टी, T1 से T2 माइनस साइन बाहर आएगा, उसके इंटीग्रेशन में ध्यान रखना के ए एम एस एल इंटू टी, वह माइनस इधर आ जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो यू कैन राइट एल टी नोट माइनस टी अपॉन टी नोट माइनस T1 माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे सोल्व करता हूं तो आई कैन राइट टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर तो टी नॉट माइनस T1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। और फाइनली आई कैन राइट, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो t इक्वल टू टी नोट माइनस T1 ई रेज टू दी पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमारे पास है। Thank you.